Assalamu alaikum student. Today our topic is system software. As you know, there are two main components of the computer, hardware and software. So hardware are those component of the computer which we can touch or feel, whereas software are those component which we cannot touch. Okay. So this is the simple definition of the software. Computer software are divided into two types, application software and system software. So today we will discuss about the system software. Okay. Before going to discuss system software, we will define what is a software. Okay. So software are those things which we can't touch, but little more technical definition of the software. Okay, the software are those are the instruction given to the computer to perform some specific task. Okay, so in other words, a software is the instruction are the instructions which tell the computer what to do, how to do, when to do. Okay, so without the software, one computer is not able to work. Okay. And what is a system software? System software is a type of a computer program that is designed to run computer hardware and application programs. As you know that a computer having system software and applications programs. Okay, we have lot of applications in computer. Okay, just like a MS Word, PowerPoint. Okay, Google Chrome, and you can see कि मैंने भी यहाँ पर डिफरेंट एप्लीकेशन ओपन की हुई है, जस्ट लाइक ये गूगल ओपन है, देन एक्टिव इंस्पायर है, एक्सेल है, ठीक है, जूम. सो all these are the computer application. Okay, so all these application software are running with the help of the system software. Okay, so system software are the necessary part of the computer. Okay, and you know one of the famous system software is the operating system. Okay, without operating system, computer is not able to perform any task. Okay, and if you don't have a operating system in your computer, then then you can't perform any task. आप कोई task नहीं कर सकते. ओके, तो कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी रन करवाते हैं एंड आपके हार्डवेयर को भी कंट्रोल करते हैं. ठीक है, व्हाट इट्स मीन, हार्डवेयर में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, आपका कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर्स हैं, ठीक है, एलईडी है, मॉनिटर्स हैं. सो ऑल दीज थिंग, ओके, जो कि हार्डवेयर में इंक्लूडेड होती है. तो इन सबको जो कंट्रोल करता है, दिस इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, एंड द फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, so this is the chapter of your book, system software. It is the chapter number 3. Okay, the software is a set of programs that enables the computer to perform routine tasks such as starting up, managing file, and shutting down. Okay, these are the several types of the system software depending on the types of the tasks they are used. Okay, so we have a different types of the system software. One of the famous types of the system software is the operating system. So basic input and output system. Okay, BIOS, in shortcut we said it BIOS. Okay, B for basic, I for input, O for output, and S for system. So remember this abbreviation. Okay, it's a famous abbreviation, BIOS, and this is a type of a system software. So the basic input output system, BIOS, is a program that starts working when the computer is switched on. It locates the operating system from backup storage and load it into the memory. Okay,
सो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, तो जो बूटिंग प्रोसेस है, जब आप देखते हैं ना कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करते हैं तो इट टेक्स 20-30 सेकेंड्स लेता है, ठीक है, कंप्यूटर को ऑन होने में। और जब ऑन होके ऑन व्हाट इट्स मीन कि जब आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन नजर आती है। सो मीनवाइल जो 30 सेकंड 40 सेकंड लेता है, तो वो क्या हो रहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो रहा होता है, ठीक है। इसको जो टेक्निकली हम क्या कहते हैं, वैसे तो आप नॉर्मली कहते हैं ना कि कंप्यूटर को स्टार्ट कर दो या ऑन कर दो, ठीक, बट टेक्निकली इसको क्या कहते हैं कि कंप्यूटर बूट अप हो रहा है, ठीक है। तो बूटिंग मीन्स क्या होता है कि कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें हैं वो लोड हो रही होती है। मीनवाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सारे रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर चेक करता है कि अवेलेबल है। अगर कोई एरर होगा तो फिर वो आपको एरर भी शो कर देगा, ठीक है। तो जब वो देखता है कि सारी चीजें करेक्ट हैं, ठीक है, सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज सही काम कर रहे हैं, फिर वो आपको डेस्कटॉप के ऊपर ले जाता है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो जाता है एंड यू कैन डू योर वर्क ऑन द कंप्यूटर। ओके, so this is called the booting system. Okay, so boot loader होता है, boot loader फाइल्स होती है थ्रू विच जो कि मेमोरी में लोड हो जाती है, ठीक है, और जिनकी हेल्प से जो कि रोम्स के अंदर या चिप्स के अंदर इंस्टॉल होती हैं आपके कंप्यूटर के। ओके, देन वी हैव अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एज आई हैव टोल्ड यू वन ऑफ द famous system software. Okay, and obviously without operating system we can't do anything on a computer, ठीक है। हम कंप्यूटर से कोई काम नहीं ले सकते। समझ आ रही बात आपको? द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, ठीक है। सॉफ्टवेयर इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड डाटा फॉर परफॉर्मिंग जर्नल टास्क ऑन अ कंप्यूटर। दीज आर टास्क दैट वी हैव टू बी परफॉर्म बाय ऑल कंप्यूटर्स, ठीक है। तो कंप्यूटर के जो रूटीन वर्क्स हैं, टास्क हैं, वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास डिफरेंट काइंड के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। हर एक की मशीन में कोई ना कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ठीक है। किसी के पास विंडो एक्सपी होगी, किसी के पास विंडो 7 होगी, ठीक है। समवन हैव विंडो विस्टा, समवन हैव विंडोज 10। तो ये आप अपने सिस्टम पर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चले एक सिंपल वे है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप अपने लैपटॉप पे या जो डेस्कटॉप है उस पे विंडोज का बटन प्रेस करें, ठीक है, और देन एक्स प्रेस करें, तो आपके पास ये मेन्यू आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें आप सिस्टम पे क्लिक करें तो आप देखेंगे दिस इज माय लैपटॉप सिस्टम, ठीक है। आई हैव विंडोज 8.1 प्रोफेशनल, ठीक है। तो वो सारी डिटेल बता देगा, रैम क्या है, ठीक है, इसके अंदर। तो आपके पास ये सारा आपका वर्जन विंडो का शो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं। और एक सेकंड मेथड है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, रन में जाना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, रन में जाने के लिए यहाँ सिंपल सर्च में लिख दें, ठीक है। ओके, तो रन का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, विंडोज वर्जन। तो आपने इसको कंप्लीट नहीं लिखना, ठीक है, जस्ट जस्ट विन और वी आर फॉर वर्जन और WIN विन फॉर विंडोज, ठीक है। जस्ट इतना लिखें और ओके कर दें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ज्यादा डिटेल तो नहीं दिखा रहा जैसे जो दूसरी कमांड में दिखा रहा था, बट आपको पता चल सकता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो इसको आप, दिस इज हाउ यू कैन चेक योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके ओके जी, मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो बूटिंग अप एंड प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस। सो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि कंप्यूटर जो है वो बूट करता है, यानी कि स्टार्ट करता है व्हेन यू प्रेस योर पावर बटन, ठीक है। जब कंप्यूटर में आप पावर बटन प्रेस करते हैं तो वो आपका बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो हेल्प इन बूटिंग अ प्रोसेस। वंस अ कंप्यूटर हैज बीन बूटेड अप द यूजर कैन वर्क ऑन इट। ओके, जब कंप्लीट हो जाता है बूट तो आपको क्या होता है, डेस्कटॉप शो ऑफ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब आप डेस्कटॉप पर आ जाते हैं, व्हाट इट्स मीन के
आपका कंप्यूटर रेडी है, सिस्टम रेडी है, आप उस पर डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हो। An interface is the way in which the two people communicate. A user interface is a program that allows a user to communicate with the computer. Okay. So जो इंटरफेस आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो आपको डेस्कटॉप शो करता है, आप जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हो, यानी कि माउस आपका अटैच है, कीबोर्ड अटैच है, यू कैन टाइप, यू कैन क्लिक, ठीक है, यू कैन डबल क्लिक। सो आपका जो ये इंटरेक्शन है विद द कंप्यूटर, जैसे फिलहाल मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको टच कर रहा हूँ इसके किसी भी प्रोग्राम को, ठीक है, माउस की हेल्प से। तो दिस इज द इंटरफेस जो मुझे प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक, शो ऑफ किया जा रहा है, और मैं इसके थ्रू कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, इसको डिफरेंट कमांड दे सकता हूँ, ठीक है ना, आइदर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड और अ माउस, राइट। सो देन है मैनेजिंग द प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये भी देख लें कि जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपका कौन सा है? विंडोज का है। इसके अलावा आपके पास लाइनक्स के भी हैं, ठीक है, एप्पल का भी है, बट एप्पल का और दूसरे जो हैं दीज आर यूज फॉर मोबाइल, ठीक है। जो मोबाइल का सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है, विच वन इज दी एंड्रॉइड। कौन सा है वो? एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो जो आप मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है, दीज आर दी एंड्रॉइड मोबाइल। ओके, so managing the program, the operating system runs all the system software and application software stored on the computer. Any problem in the operating system mean that neither system or the application software can run properly. Okay, ये तो बात मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वर्किंग सही नहीं कर रहा, ठीक है, या उसके अंदर कोई वायरस आ गया है या कोई और एरर आ गया है, देन यू विल नॉट बी एबल टू वर्क ऑन कंप्यूटर। तो फिर आपका कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम भी रन नहीं करेगा, ठीक है ना। सो बिकॉज के ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो होता है वो आपके कंप्यूटर को एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करवा रहा होता है, ठीक है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी नहीं चलेंगे, ना ये ज़ूम चलेगा, ठीक है, ना ये गूगल क्रोम चलेगा, ठीक है। मैनेजिंग द फाइल एंड डायरेक्टरीज, तो फाइल सिस्टम्स को स्टोर करना, ठीक है, ये भी सारी ड्यूटी किसकी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की है। कौन सी फाइल कहाँ पर लोकेट कर रही है, ठीक है, वो कितनी स्पेस ले रही है, कब उसको क्रिएट किया गया, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी सब फोल्डर मौजूद हैं। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन फाइल्स एंड फोल्डर बाय सॉर्टिंग ईच फाइल एट द यूनिक लोकेशन, ठीक है, इन मेमोरी। तो मेमोरी के अंदर जहां पर उसका एड्रेस होगा, जहां पर वो पड़ी होगी, वो आपको बताएगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन आल्सो चेंज द लोकेशन ऑफ अ फाइल इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। It allows the same file to be used by two different application program. तो आप एक फाइल को डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम में खोल सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक दिस कि मैंने इसको यहाँ पर भी ओपन किया है, तो आई कैन ओपन इट ऑन पेंट। तो अगर ये इसको सपोर्ट करता है तो मैं इस फाइल को पेंट में भी ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एट ए टाइम एक्टिव स्पायर में भी चल रही होगी, मौजूद होगी, ठीक है। देन आपकी यहाँ पर भी इन द सेम वे, जैसे कि आप एक मीडिया फाइल जो है वो विंडोज मीडिया प्लेयर में भी चला सकते हैं और किसी और प्लेयर के अंदर भी चला सकते हैं, ठीक है ना। देन कंट्रोलिंग सिस्टम डिवाइसेस, ठीक है, सिस्टम डिवाइसेस जितनी भी होती हैं आपके साथ, ठीक है, जो भी डिवाइसेस हैं, the operating system control system devices such as peripheral devices and the drives. Okay, so peripheral devices कौन सी होती हैं? What is the peripheral devices? Peripheral devices जो हैं वो input plus output, ठीक है। तो input and output both devices are called कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। ओके, तो जब एक सिस्टम के अंदर दोनों चीजें मौजूद होंगी, ठीक है, इनपुट भी और आउटपुट भी, देन इट इज पेरिफेरल डिवाइसेस, इट कॉल पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टुगेदर आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है।
और हमें इसी तरह डिवाइस ड्राइवर की भी नीड होती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइवर वी हैव, ठीक है, टू रन दी हार्डवेयर। तो कुछ हार्डवेयर होते हैं जिनको चलाने के लिए, रन करने, या जिनको कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनको रन करने के लिए एक ड्राइवर के सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कि उनको कैसे कंट्रोल करना है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर द डिवाइसेस परफॉर्म द एग्जैक्ट फंक्शन that is needed by the user. It coordinates between the devices and application. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डिवाइसेस और एप्लीकेशन के अंदर के दरमियान भी कोऑर्डिनेट करवाता है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास बहुत सी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है ना। माउस है, जैसे माउस की हेल्प से इस वक्त मैं इसको मूव कर रहा हूँ ना, अपने इस पेन को, कर्सर को, ठीक है। तो दिस इज डन थ्रू दी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा जो आउटपुट आपको स्क्रीन पे नजर आती है, दिस इज आल्सो, अभी मेरी आवाज आपको आ रही है, व्हाट इट्स मीन के माइक एंड स्पीकर ये दोनों भी जो है कंट्रोल किए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मैनेजिंग द डिवाइस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आप देखें तो वो मिडिल पार्टी के तौर पे काम कर रहा है, वो हार्डवेयर से भी इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंड वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से भी इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये एज ए मिडिल पार्टी वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों को हेल्प आउट कर रहा है। ओके, सो देन वी हैव अ मल्टीटास्किंग, ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन मेक इट इजी टू मल्टीटास्क। मल्टीटास्किंग मीन डूइंग टू और मोर थिंग्स एट अ सेम टाइम, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो मल्टीटास्किंग करता है, ठीक है। आजकल के तो हमारे पास जो लेटेस्ट कंप्यूटर हैं, ठीक है, एडवांस कंप्यूटर हैं, उनके अंदर तो मल्टीटास्किंग की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। जस्ट लाइक दैट कि इवन आई एम डूइंग दी मल्टीटास्किंग। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने जूम भी ओपन किया हुआ है, ठीक है, मैंने एक्टिव इंस्पायर भी ओपन किया है। मैं अगर यहाँ पर कुछ भी ओपन कर लूँ, ठीक है, तो मैं गूगल को भी कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कोई भी वर्किंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखें आपको गूगल में भी वर्किंग करके दिखा रहा है, एक्टिव इंस्पायर पे भी मैं एट ए टाइम काम कर सकता हूँ। आई कैन ओपन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ द मल्टीटास्किंग, ठीक है। जो बड़ी इन्वायरमेंट होती है वहां पर सर्वर भी मौजूद होते हैं और डिफरेंट किस्म की मल्टीटास्किंग चल रही होती है। सो तो दिस इज द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर। सो कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीटास्किंग, ठीक है ना, कि डिफरेंट टास्क को एट ए टाइम कर रहा होता है, ठीक है। या वन और मोर देन वन टास्क को एट ए टाइम कंप्यूटर इज परफॉर्मिंग वन एंड मोर देन वन टास्क एट ए टाइम। ओके, दिस इज कॉल्ड द मल्टीटास्किंग। सो होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि व्हाट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके, एंड व्हाट इज द सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स डिफरेंट types and sorry different tasks, okay।